Good morning, students. Class 8 Science, and today's topic, which fuel is the best? Fuel is any material that is capable to releasing energy when burned. Coal, diesel, petrol, cooking gas and wood are the most common fuels. Fuels can be solid, liquids and gases. Each fuel has different chemical characteristics. The choice of the fuel will depend on its use, cost, easy availability, and efficiency. The choice of fuel depends on its uses. For example, a candle is an ideal fuel to illuminate a small room when electricity is not available. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल है तो कैंडल ही एक आइडियल फ्यूल रहेगी. क्राइटेरिया ऑफ Criteria for an ideal fuel. A fuel must have high calorific value. Such a fuel give out more heat. A fuel should have a moderate rate of combustion. It should not burn too quickly. A fuel should be easily stored and transported. A fuel with very low ignition point is difficult to store and transport as it catches fire easily. The ignition temperature of fuel should not be too high, as reaching the ignition temperature will not be practical. A fuel should have a low content of non-combustible material. Such material produce harmful gases and pollute the air when the fuel burns. The fuel should be easily available and cheap. तो जैसे कोई भी फ्यूल है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए और उससे ज़्यादा हीट निकलनी चाहिए. फ्यूल हमेशा मॉडरेट होना चाहिए. इट शुड नॉट बर्न टू क्विकली, ये आसानी से या जल्दी से बर्न नहीं होने वाला चाहिए. फ्यूल शुड बी इजीली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, फ्यूल को आसानी से स्टोर या ट्रांसपोर्ट किया जा सके. फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होने पर भी प्रॉब्लम होती है. किसको? क्योंकि ये आसानी से फिर फायर कैच कर सकता है. और द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल शुड नॉट बी हाई. इग्निशन टेम्परेचर जो है फ्यूल का हाई नहीं होना चाहिए. रीचिंग इग्निशन टेम्परेचर विल नॉट बी प्रैक्टिकल. द फ्यूल शुड बी ईजिली अवेलेबल एंड चीप. फ्यूल हमेशा आसानी से मिल जाए और सस्ता भी होना चाहिए. फ्यूल शुड नॉट लो कंटेंट नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल, उसका जो कंटेंट रहे वो लो होना चाहिए ताकि वो सच ए मटेरियल प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस. अगर ज़्यादा लो रहेगा तो उससे हार्मफुल गैसेस और पॉल्यूट एयर मिलेगी और तभी फ्यूल बर्न करेगा और वो क्या होगा, इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग या फिर अदर एनिमल्स के लिए ठीक नहीं होगा. हाउ डज ए कैंडल बर्न? कैंडल कैसे बर्न करती है? ए कैंडल इज़ ए कॉमन कॉलम ऑफ बैक्स. इट द मिडल ऑफ द बैक्स कॉलम ए कॉटन विक इन इज फिक्स्ड. व्हेन द विक इज लाइटेड इट बिगिन टू बर्न. तो जैसे मोमबत्ती आप सभी लोगों ने देखा है तो उसमें एक पतली से धागा लगा रहता है कॉटन है का और वही बर्न होता है. एज द बिग बर्न इट प्रोड्यूस हीट. जैसे आप धागा को जलाते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होता है. द हीट मेल्ट एंड वैक्स अराउंड द विक. द एयर अराउंड द फ्लेम बिकम वार्म एंड राइजेस अपवर्ड एंड द प्लेस ऑफ कूल एयर rests in the form of all side. The cool air keeps the edge of the candle cool, hence the wax of it do not melt and cup like structure formed just below the lighted wick. तो जब कैंडल जलाते हैं तो उसमें देखिए कप जैसा क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी में से कैंडल बर्न होती रहती है और ये लिक्विफाई होता रहता है. द कप will filled with warm liquid wax. The cool air around the cup does not allow the melted wax
to reach the ignition point and hence it does not burn. और अगर ये मेल्ट मतलब इसको अगर ये कूल हो गया टेम्परेचर से तो फिर ये बर्न नहीं होगा. The wick does not burn all the way down because the cooler melted wax ignites the flame. और ये भी हो सकता अगर यहाँ पे कोल्ड रहा या ठंडा रहा ये वैक्स तो भी बर्न होने में प्रॉब्लम होगी. How does the wax begin to burn? For the wax to burn, it must reach the flame. The warm liquid wax gets sucked upward in the wick and reaches the flame. This happens due to capillary action of the wick. On reaching closer to the flame, the liquid wax gains more heat and changes into the wax vapor. The heat air that rises upwards carries the wax vapor into the flame and the wax vapor burns. Thus, the burning candle gets the continuous supply of the wax vapor and the combustion of the wax continues. तो इसमें क्या हुआ, वैक्स जो है बर्न हो रही है ना. इट मस्ट रीच द फ्लेम और वार्म लिक्विड वैक्स अपवर्ड मतलब उस धागे पे क्या हो रही है, धीरे धीरे सक की जा रही है और जिसकी वजह से फ्लेम जल रहा है. और ये कैसे हो रहा है, कैपिलरी एक्शन की वजह से हो रहा है. द रीचिंग क्लोजर द फ्लेम द वैक्स गेन मोर हीट एंड चेंज इनटू वैक्स वेपर. वेपर में चेंज हो जाता है. हॉट एयर जितनी होती है राइजेज अपवर्ड होती है और वैक्स वेपर इनटू द फ्लेम वेपर बर्न्स. Thus, burning candle get continuous supply the wax vapor and combustion the wax continues. Thank you, student.